Just wait. Now it is fine. So let us start with ITC now. So we are going to start with a new chapter, input tax credit, which cover how many sections? Which cover 3 sections: section 16, section 17, and section 18. These three sections is very important because अगर ये 3 sections आपको समझा तो आपको पेमेंट ऑफ टैक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी. पेमेंट ऑफ टैक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी. Is it okay? So today, before starting with section 16, first of all we have to understand कि सर हमारा इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है and what is that, what is credit. First of all we have to understand that. अगर वो हम समझ गए तो बाकी का कंसेप्ट समझना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, चलो. यस सर. जस्ट वेट. इनपुट टैक्स क्रेडिट known as ITC, section 16 to section 18. Section 16 to section 18. Sir, as you all know कि we are doing inward supply. Yes sir, हम लोग inward supply करते हैं. Inward supply means what? Sir, inward supply means purchases. But we use the word inward supply instead of purchases under GST. Yes sir, बराबर है. Whenever we are doing any purchases, whenever we are doing any inward supply, we are required to pay tax because the person from whom we are purchasing or we are doing inward supply, if that supplier is a registered person, then he is going to charge a tax. He is going to charge a tax. So whatever the tax we are going to pay on purchase of input, that particular tax is called as a purchase tax. जिसे हम GST में input tax बोलते हैं. Input tax. Now what do you mean by input tax? Input tax means tax on inward supply. First of all, you have to understand what is input tax. So what do you mean by input tax? Input tax means tax on inward supply. So make sure that whenever you are paying any tax on inward supply, it is called as an input tax. ठीक है sir. So whenever we are paying any tax on inward supply, it's called as an input tax. Whenever we are paying any tax on inward supply is called as an input tax. Sir, ठीक है sir. Input tax का मतलब हमें समझ में आया. Sir, input tax what we have understood is at the time of purchasing goods or availing services, we are required to pay tax to the supplier. And whatever the tax we are going to pay, that tax is called as an input tax. Now, this tax is paid generally on inward supply. Now, this can be of goods also, this can be of services also. So, samjha. So now we have to understand what do you mean by input tax credit. Sir, input tax credit का मतलब क्या होता है? चलो, let us give an example. Sir, मैं आपको एक simple example देता हूँ. Hoping with that example, you will try. Hopefully, you will be able to connect the meaning of input tax credit. So, input tax हमें समझ में आया. Input tax means whenever we are making any inward supply, we are supposed to pay tax. So that tax will be called as a tax on inward supply, or it is also called as an input tax. So, but still we have not yet understood what do you mean by input tax credit. ये credit का मतलब क्या होता है? What do you mean by credit? What do you mean by credit? So we have to understand first of all what do you mean by credit. So before understanding credit, first of all you have to understand one simple example, and based on that example you will understand everything. ठीक है सर. As you always know कि जब भी आपको कोई आउटवर्ड सप्लाई करना है, दिस इज यू. सर, यू मतलब हम रजिस्टर्ड डीलर है. बरोबर है सर. सर, हम लोग क्या करेंगे? रेसिपिएंट से, नॉट रेसिपिएंट से, सप्लायर से, इनवर्ट सप्लाई करेंगे. बरोबर है. और ये इनवर्ट सप्लाई करने के बाद
किसको सेल करेंगे? रेसिपिएंट को सेल करेंगे। ठीक है, दिस इज वी, दिस इज वी, ये हम है। सर मैंने इनवर्ट सप्लाई किया, मैंने क्या किया? इनवर्ट सप्लाई किया। किससे किया? सप्लायर से किया। सर दिस इज मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज मी, आई एम अ रजिस्टर्ड डीलर। मैंने इनवर्ट सप्लाई किया फ्रॉम होम, फ्रॉम सप्लायर। इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई मीन्स परचेज। Let us assume the value of supply. Now do you know what do you mean by value of supply? Value of supply is 1 lakh. Value of supply 10,000 lakh. And let us assume the goods which I have purchased or inward supply किया उसके ऊपर GST 12% है. CGST at the rate of 6%. SGST at the rate of 6%. So 10,000 का 6%, 600, and it will be 11,300, 200. So this is the total value. बराबर है. When supplier is going to make an outward supply to me, for me it is an inward supply. मेरे लिए सर ये inward supply, मेरे लिए inward supply. How much amount I'm going to pay to supplier? Sir, you're going to pay 11,200. सर समझ में आता? सर जिसमें आपने टैक्स कितना पे किया? सर हमने टैक्स पे किया 1200 rupees, and these 1200 rupees is called as input tax. Input tax popularly also called as purchase tax, but हम लोग उसको जीएसटी में purchase tax नहीं बोलते, we called it as a input tax. सर समझ में आ? Now what is the value of the goods? So value of the goods is 10,000, and as you all know the value of supply में, value of supply मैंने goods purchase कितने में किया? सर 11,200 में नहीं किया, 10,000 में किया। उसके ऊपर बाकी का जो 1200 रुपीज का जो अमाउंट था वो टैक्स कंपोनेंट था। सर बट परचेज तो 11,200 में किया। नहीं नहीं नहीं, परचेज 10,000। बट सर आपने पे कितना किया है? तो 11,200, तो परचेज तो 11,200 में किया ना बेटा, मुझे टाइम दो। लेट अस अज्यूम माय वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 10,000, और मैंने वो रेसिपिएंट को 2,000 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करने की बात दी। मैंने 2,000 रुपीज का प्रॉफिट ऐड किया और रेसिपिएंट को ये गुड्स क्या किया? आउटवर्ड सप्लाई। मुझे बताओ ये गुड्स मैंने आउटवर्ड सप्लाई किसको किया? रेसिपिएंट को। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है सेल। पहला इनवर्ड सप्लाई था, फिर आप वो जो आउटवर्ड सप्लाई किया। ठीक है, दिस इज माय टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर उसमें मैंने क्या किया? उसे जीएसटी चार्ज किया। कितना परसेंट? 6%। 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। 6% आएगा 720, इधर आएगा 720, and how much amount I'm going to charge? I'm going to charge 13,420 rupees. From whom? From receipt. सर समझ में आता है? सर अभी सारे बच्चे ध्यान दें। सर at the time of inward supply, at the time of inward supply, I have already paid 1,200 rupees का tax to whom? To supplier on inward supply. ठीक है, but बट जब मैंने रेसिपिएंट को गुड सप्लाई किया तो सर रेसिपिएंट से मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया, तो रेसिपिएंट से मैंने 1440 का टैक्स कलेक्ट किया। कितने का टैक्स कलेक्ट किया? 1440 का। एंड एज वी ऑलरेडी डन द सेम थिंग सिंस वी हैव स्टार्टेड विद जीएसटी की सर व्हेनेवर वी आर डूइंग एनी इन आउटवर्ड सप्लाई, so we are going to collect the tax from the recipient because we are the registered dealer. हम ये टैक्स कलेक्ट करके किसको पे करेंगे? डायरेक्टली गवर्नमेंट। अगर मैं आपको पूछूंगा बताओ गवर्नमेंट को आप लोग टैक्स कितना पे करोगे, तो आप बोलोगे सर 1440। यू आर 100% करेक्ट। जिसमें से आप 720 किसको पे करोगे? 720 पे करोगे सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और एसजीएसटी का पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को। बराबर है? यस सर बराबर है। बट अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बेटा आप गलत हो। आप ऐसा नहीं करोगे। आप क्या बोलोगे? सर मैंने 1440 का टैक्स कलेक्ट किया। बराबर है? बट ये 1440 में मैंने ऑलरेडी पहले भी टैक्स पे किया था जब मैंने इनवर्ट सप्लाई किया था, तो मैं दो बार टैक्स क्यों पे करूं? पहले भी मैंने 1200 का टैक्स पे किया था, फिर इससे कलेक्ट करके फिर आपको टैक्स पे करूं, ये तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। ये तो गलत है। डबल टैक्सेशन, जीएसटी में डबल टैक्सेशन नहीं आता। जीएसटी का मेन कॉन्सेप्ट एक ही है, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन लेक्चर्स। वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर इंट्रोडक्शन लेक्चर्स। इज इट ओके? यस सर। सो करना क्या है? तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा सर
मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया, गवर्नमेंट बोले कि ठीक है सर बरोबर है, ये कौन सा आप नया काम कर रहे हो। मैंने सीजीएसटी कलेक्ट किया, मैंने एसजीएसटी कलेक्ट, 720 सीजीएसटी कलेक्ट किया, 720 एसजीएसटी कलेक्ट किया। मैं आप लोग को 720 पे नहीं करूंगा बिकॉज मैंने कुछ टैक्स परचेज करते वक्त किया था, परचेज करते वक्त जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स, परचेज टैक्स। मैंने 600 सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, 600 स्टेट को दिया था। देखो बेटा, सीजीएसटी डायरेक्टली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, एसजीएसटी डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। यहाँ पे हम लोग बात आईजीएसटी की नहीं कर रहे। आईजीएसटी रहता है तो वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरा अकाउंट में पूरा पैसा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट 50% अपना शेयर रखता है, बाकी 50% कौन से स्टेट को देना है वो कंजम्पशन बेस्ड पे होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा कि जीएसटी वालों को बोलूंगा कि सर मैंने कलेक्ट किया एग्रीड 720, बट मैंने 600 भी पे किया है वही सेम कुछ के ऊपर। तो मैं टैक्स आपको 720 नहीं दूंगा, मैं आपको टैक्स दूंगा कितना, इट विल बी 120 एंड 120, ये टैक्स मैं आपको दूंगा, ना कि 720। दिस 120 is called as net tax payable. Now why you are paying less tax? You are paying less tax just because you have taken a benefit of input tax. आपने पहले जो टैक्स पे किया था उसका बेनिफिट आप ले रहे हो। बेनिफिट ले रहे हो मतलब आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो फॉर फ्यूचर पेमेंट ऑफ टैक्स। मुझे बताओ, क्या आपने ये 600 माइनस किया? हाँ। क्या करके माइनस किया? सर ये हमने इनपुट टैक्स करके माइनस किया। जब ये इनपुट टैक्स करके आप माइनस करोगे उसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है बेनिफिट लेना। सर क्या ये बेनिफिट सबको मिलता है? दैट इज राइट नाउ वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस। माय मेन ऑब्जेक्ट इज टू डिस्कस व्हाट इज इनपुट tax and what is input tax credit. Input tax means tax on inward supply. Input tax credit means whatever the tax we have paid on inward supply, we are going to take the benefit from outward supply. तो आउटवर्ड सप्लाई से वो टैक्स में क्या करूंगा, माइनस करूंगा, और जो सीजीएसटी का पार्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करूंगा, एसजीएसटी का पार्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करूंगा। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर किसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं समझा है तो लेट, नहीं समझा है तो मुझे पूछो। जल्दी बेटा, इफ एनीबडी हैव नॉट अंडरस्टूड इनपुट टैक्स लेट मी नो, तो मैं आगे बढ़ू। जल्दी जल्दी, फास्ट, एक्सपेक्टिंग क्विक responses from every. If you have understood, put a message in the chat box, yes yes understood। नहीं समझा है डाउट पूछे, क्लियर करेंगे आपके डाउट। समझा? ठीक है सर, सर गो अहेड। ओके, सो सर हमने दो कॉन्सेप्ट देखे। इनपुट टैक्स मींस, input tax means at a time of as a supplier, as a dealer, recipient, when I will be purchasing, if I will be purchasing then only I'm going to supply। मैं सामने वाले कस्टमर को तब तक नहीं बेच सकता जब तक मैं खरीदता नहीं, अनलेस आई एम अ मैन्युफैक्चरर। बरोबर है सर, मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल तो लगेगा आपको, बरोबर है। तो मैं जब परचेज करते वक्त कोई परचेज करता हूँ और कोई टैक्स पे करता हूँ उसको मैं इनपुट टैक्स बोलता हूँ, ठीक है। और सर जब मैं आउटवर्ड सप्लाई करते वक्त मैं कोई टैक्स कलेक्ट करता हूँ, किससे? रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करता हूँ, वो पूरा का पूरा टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देता हूँ। गवर्नमेंट को बोलता हूँ देखो ये टैक्स तो मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया है, बट मैंने ऑलरेडी कुछ टैक्स ऑलरेडी मैंने पे किया हुआ है, वो मैं माइनस करूँ और इतना टैक्स पे करूँ। अभी क्वेश्चन ये आता है सर, अगर आपको याद होगा आपने हमें बताया था जीएसटी ये वैल्यू बेस्ड टैक्स, वैल्यू एडिशन बेस्ड टैक्स, वैल्यू एडिशन बेस्ड टैक्स। मुझे बताओ मैंने कितना वैल्यू उसमें ऐड किया? सर 10,000 का वैल्यू था, आपने 2,000 का प्रॉफिट ऐड किया। कितने थाउजेंड का प्रॉफिट ऐड किया? सर मैंने वैल्यू 2,000 से बढ़ा दी, बरोबर है? यस। तो टैक्स तो 2,000 पे लगना चाहिए। सर 2,000 पे ही लगा है, कैसे? सर 2,000 का 6% कितना आएगा? 2,000 का 6% सीजीएसटी, 2,000 का 6% सीजीएसटी 120, 2,000 का एचजीएसटी कितना आएगा? 120। और आप देखोगे ना जो आप नेट टैक्स पे कर रहे हो ना वो 120 120 240 पे कर रहे हो। देखो तो हम लोग का जो टैक्स पेमेंट हो रहा है वो सिर्फ वही अमाउंट पे हो रहा है जिस पे अभी तक टैक्स नहीं लगा हुआ है। सर 10,000 पे तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका है और आपने वापस उस पे वापस टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है, तो डबल टैक्सेशन हुआ।
तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए आईटीसी का कॉन्सेप्ट है। बात समझा या नहीं समझा? तो इन शॉर्ट अगर मुझे इसको डिफाइन करना है, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, टू अवॉइड, टू अवॉइड double taxation, to avoid double taxation, the concept of ITC, that's it. ITC ये कॉन्सेप्ट आया क्यों? जस्ट टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, दैट्स इट। अगर यहाँ तक क्लियर है तो लेट मी नो, तो मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। सर मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय आईटीसी? देखो, इन लेमैन लैंग्वेज इफ आई वांट टू राइट आईटीसी, आईटीसी आई विल सेइंग क्रेडिट ऑन क्रेडिट ऑन परचेज टैक्स। इंस्टेड ऑफ परचेज मैं लिखता हूँ इनपुट टैक्स। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस क्रेडिट ऑन परचेज टैक्स, इनपुट टैक्स, ठीक है। सर इसका मीनिंग क्या आएगा? मीनिंग बहुत सिंपल है, बेनिफिट गिवन, बेनिफिट गिवन ऑन पेमेंट, benefit given on payment of tax on inward supply, on inward supply of goods or services, goods or services or. If anybody want to ask anything, let me. Sir, what is input tax? Input tax means, input tax credit means benefit given on payment of tax on inward supply, भले वो गुड्स का हो, भले वो सब तो सर्विस का हो, या दोनों का हो। इनवर्ट सप्लाई करते वक्त जो टैक्स पे किया था, वो टैक्स जब हमको माइनस करने मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इफ यू आर डन विद दिस, मुझे बता दो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। नाउ वी विल मूव विद द थ्योरी। सर थ्योरी पे जाएंगे हम लोग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों को, प्लीज 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 ध्यान देना। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स व्हाट? सर इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 डिफाइंस इनपुट टैक्स मीन्स इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू द रजिस्टर्ड पर्सन। बेटा इनपुट टैक्स का कंसेप्ट आता ही कहां से है, शुरू होता ही कहां से? रजिस्टर्ड पर्सन। बेटा अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो ही इसके बारे में सोचना है। इफ यू आर अनरजिस्टर्ड पर्सन, डोंट थिंक अबाउट इनपुट टैक्स। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, जीएसटी डिपार्टमेंट का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स, सर सीजीएसटी आप पे करोगे, एचजीएसटी पे करोगे, यूटीजीएसटी पे करोगे, आईजीएसटी पे करोगे, जो आपको चार्ज किया गया ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड टू हिम। मेड टू हिम मतलब सर ये इनवर्ड सप्लाई, जो भी इनवर्ड सप्लाई करते वक्त आपसे चार्ज किया गया इन फॉर्म ऑफ टैक्स इन द जीएसटी, वो उसके बारे में बात कर रहा है। ये बातें ये भी कर रहा है कि सर उसमें आईजीएसटी होगा अगर वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा। क्या होगा? आईजीएसटी होगा अगर वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा, और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एज अंडर आरसीएम। आरसीएम का मतलब क्या है? सर आरसीएम का मतलब है, आप व्हेन यू आर बाइंग द गुड्स एज अ रेसिपिएंट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन आपसे टैक्स नहीं कलेक्ट करेगा, पर उसके बिहाफ में आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना। सो आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर। हमारे अगर आप मेरा नॉलेज ऐसा बोलता है कि जीएसटी में हार्डली 1 to 2% ऐसे गुड्स और सर्विसेज है जिस पे आरसीएम अप्लाई होता है, बिकॉज अदरवाइज मेजॉरिटी पीपल्स आर फॉलोइंग, मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स आर इज बेस्ड ऑन एफसीएम। एफसीएम का मतलब होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम कहाँ पे अप्लाई होता है? जैसे कि सर लॉयर सर्विस दे रहा है, मुझे दे रहा है, पर लॉयर तो सर नेगेटिव लिस्ट में है, तो मुझे जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को डायरेक्टली एज अ रेसिपिएंट। जीटीए है सर, अगर आपका जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मैंने बताया था गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मतलब क्या है, सेक्शन 11। या परचेज अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करो, वो सप्लायर है, वो आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा, पर जो गुड्स आपने परचेज किया है वो टैक्सेबल है, तो उसके बिहाफ में आप जाके टैक्स गवर्नमेंट को पे करो और उसका आईटीसी का बेनिफिट ले बात करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से समझना है, सेक्शन 16 इजी है।
बट सेक्शन 17 और सेक्शन 18 थोड़ा हैवी जाएगा। क्या जाएगा? हैवी जाएगा। तो वो समझने के लिए आपको सेक्शन 16 बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सर मिस्टर ए ने परचेज किया गुड्स बी से, और वो भी कितने का? 5000 का, जिसपे उसने 450 CGST एंड 450 IGST। सर ये क्या है? ये है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है सर? इनपुट टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन परचेज। और टोटल उसने कितना पे किया? सर ए ने पे किया 5000 प्लस 450 प्लस 450। सर टोटल पेमेंट उसने किया 5900। टोटल पेमेंट कितना किया? 5900। फिर बाद में ए ने वो गुड सेल किया सी को। सी को कितने में सेल किया? 6000। तो इसका मतलब जब सब जब वो सेल करेगा तो वो आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा। आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा। आउटपुट टैक्स बोलो या टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई मतलब एज एन सप्लायर आप किसको सेल कर रहे हो? रेसिपी। सर आपने सप्लाई कितने का किया? 6000 का। 6000 पे 18% का जीएसटी। कितने परसेंट का जीएसटी? 18%। 6000 का 9% कितना आएगा? CGST SGST। CGST SGST। सर 6000 का 9% आएगा, 6 9 जा 54, 540, 540। ये क्या है सर? ये जब आपने आउटवर्ड सप्लाई किया तो सामने वाले से टैक्स कलेक्ट किया। चाहिए तो यहाँ पे लिखो टैक्स कलेक्टेड ऑन। और आपने परचेज करते वक्त इनपुट टैक्स दिया था या नहीं दिया? दिया था। उसका बेनिफिट आप ले रहे हो। और बेनिफिट कितना ले रहे हो सर? 450 मैंने CGST को पे किया, 450 SGST को पे किया। तो आप देखोगे सामने वाले को आप सिर्फ नेट टैक्स पेएबल कितना होगा? सर नेट टैक्स पेएबल विल बी 92 स्टेट गवर्नमेंट, 92 सेंट्रल गवर्नमेंट। टोटल टैक्स का पेमेंट कितना कर रहे हो आप? सिर्फ 180। आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए विल गेट इनपुट टैक्स 900। सर 900 कहाँ से है? देखो ना बेटा, 900 इनपुट टैक्स मिला। और वो टैक्स कितना पे करेगा? सर टैक्स नेट टैक्स पेएबल विल बी 180 रुपीज। देखो यहाँ पर नेट टैक्स पेएबल कितना है? 180 आया। हाँ सर आया। अभी यहाँ पे ध्यान देना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर हमें इनपुट आउटपुट टैक्स समझा, ठीक है। सर हमें इनपुट टैक्स समझा, ये भी बराबर है। अभी मुझे बताओ आपने गुड्स परचेज कितने पे किया था? सर हमने गुड्स परचेज किया था इनवर्ड सप्लाई 5000 में, और आउटवर्ड सप्लाई किया 6000। इसका मतलब सर आपने वैल्यू एडिशन कितना किया? 1000 रुपए। 1000 रुपए का 6% कितना? 1000 रुपए का 9% है ना, 9%। सर 1000 का 9% कितना आएगा? सर 1000 का 9% आएगा 90 रुपीज। 1000 का CGST, ये CGST है, और SGST भी 90 आएगा। अब दोनों को प्लस करो तो 180 आता है। देखो 180 निकाला। पर मैंने सिर्फ 1000 को बेस लेके नहीं निकाला, मैंने पूरे ग्रॉस वैल्यू पे लिया, राइट ऑफ किया, सेट ऑफ दिया, और बाद में नेट टैक्स पेबल निकाला 180। इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनी डाउट इन दिस, लेट मी नो, अदरवाइज मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। अगर किसी को जाना है, अगर किसी को नहीं समझा है मुझे पूछो, नहीं समझा है तो मैं आगे। लेट मी नो फास्ट। ठीक है सर, समझा? ओके। Let us start with the next part now. So illustration 1 हो गया, illustration 2. What is illustration 2? Very simple. सर illustration 2 में उसने बोला है कि सर ग्रे प्राइवेट लिमिटेड ऑफ मुंबई इंपोर्ट किया चाइना से। सर चाइना से इंपोर्ट किया, इंडिया में गुड्स आया, IGST लगेगा, बरोबर है। सो टैक्स ऑन इंपोर्ट, सर मैं ऐसे बोल सकता हूँ टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई। टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई, जस्ट वेट, टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई। और क्या लगेगा सर? IGST लगेगा, ठीक है, IGST लगेगा। हाउ मच अमाउंट? सर 10 लाख रुपीज के ऊपर 18%, 1,80,000। सर कैसे आया? 10 लाख रुपीज के ऊपर 18%, इट विल बी 1,80,000। सर समझा?
अभी सर उसने क्या किया है, गैरी लिमिटेड ने ये सेम गुड्स रोहन को सेल किया जो गुजरात में रहता है। सर गैरी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से बिलोंग करता है। पहले ये रेसिपिएंट था at the time of inward supply. Now he becomes supplier and who becomes recipient? सूरत। सर मुंबई सूरत दो अदर स्टेट्स है। तो मैं ये बोलूंगा टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितना आएगा, एज आईजीएसटी अप्लाई होगा क्योंकि दो अलग अलग स्टेट है। आईजीएसटी आएगा कितना, आईजीएसटी आएगा सब 12 लाख के ऊपर 18%, 2,16,000। कैसे आया, 2 लाख 12 लाख के ऊपर 18%, 2,16,000। तो सर हम लोग कैसे लेंगे ना, मैं बोलूंगा टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, सारे बच्चे ध्यान देंगे, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई इट विल बी 2,16,000 माइनस टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई 1,80,000। It will be how much, sir? It will be 36. It will be net tax paid. सर अभी टैक्स ऑन इनपुट सप्लाई मैंने माइनस इसलिए किया बिकॉज मैं मान के चल रहा हूं मैंने सेक्शन 16 की कंडीशन फुलफिल की। कंडीशन क्या की है, फुलफिल की, ऐसे मैं मान के चल रहा हूं। बट सर आपने सेक्शन 16 तो हमें कराया नहीं, तो आप कैसे एजम्पशन ले रहे हो सेक्शन 16 की कंडीशन फुलफिल की? मैंने बोला मैं मान के चल रहा हूं। तो आपको आईटीसी का बेनिफिट माइनस करने तब मिलेगा जब आप सेक्शन 16 के कंडीशन फुलफिल करोगे, ये ध्यान देना। सो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है सर आईटीसी ऑन इंपोर्ट कितना पे करना पड़ेगा, 1,80,000 पे 36,000। सो मेरा नेट टैक्स पेबल विल बी 36,000। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट वेट। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट 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 नहीं कोई बात। सर मैं अभी जा रहा हूँ डिस्कस कर रहा हूँ प्रोविजन सेक्शन 16। नाउ व्हाट इज सेक्शन 16? सर सेक्शन 16 क्या है? सर सेक्शन 16 है when you are eligible for ITC, which are the condition you have to fulfill for taking the benefit of ITC. Just बेटा, ठीक है। नाउ सेक्शन 16 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 16 क्या है? सेक्शन 16 says when you are eligible for ITC, what are the condition you have to satisfy to get the benefit of ITC? So that there are total how many condition you have to fulfill? There are total 4 condition. One is section 16(1), section 16(2), section 16(3) एंड सेक्शन 16(4). ऐसे टोटल 4 कंडीशन। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं, इट इज नॉट लाइक आपको एक कंडीशन भी फुलफिल करोगे तो विल बी गेटिंग बेनिफिट। आंसर इज नो। इवन आफ्टर फुलफिलिंग वन कंडीशन आल्सो यू विल नॉट गेटिंग बेनिफिट, यू हैव टू फुलफिल ऑल द 4 कंडीशन टू गेट द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। सबसे पहला कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन क्या है? प्लीज 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 लिसन एवरीवन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज जनरली बच्चे क्या करते हैं आईटीसी में मिस्टेक्स कर देते हैं। सो हमें मिस्टेक्स नहीं करना है, हमें हर चीज को अच्छे से समझना, हर चीज को अच्छे से समझना है। आर यू गेटिंग? किसको कुछ पूछना रहेगा तो प्लीज पूछो। नाउ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट,
उसने बोला है एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, सो आई एम फोकसिंग मोर ऑन रजिस्टर्ड। तो आपको आईटीसी के लिए आप इलिजिबल तब होते हो, आप आईटीसी के लिए इलिजिबल तब होते हो जब आप एक रजिस्टर्ड पर्सन, सबसे पहले दिमाग में डालो। इसका मतलब इफ यू आर अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड डीलर, तो बेटा आप सेक्शन 16 में कवर नहीं होते हो और आपको इनपुट टैक्स माइनस करने नहीं मिलेगा। आपको 2 बार टैक्स पे करना पड़ेगा, परचेस करते वक्त भी परचेस करते, आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट इज वेरी क्लियर। आईटीसी का बेनिफिट लेने के लिए एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। क्यों बेटा, यहां से लेके यहां तक मैं एज ऑफ नाउ निकाल देता हूं, मान के चलो ये नहीं है, मान के चलो ये सेंटेंस नहीं, ठीक है। एवरी टैक्सेबल पर्सन, एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन एंटाइटल मतलब क्या आप रजिस्टर्ड हो? हाँ, इफ यू आर रजिस्टर्ड देन यू शुड टेक आईटीसी। एंटाइटल टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट चार्ज। अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हो, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हो, तो आपको एंटाइटल है, आप आईटीसी ले सकते हो। किस पे? अगर आपको चार्ज किया है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू हिम which are used for, which are used or intended to be used for the intended to be used, which are used or intended to be used in the course or furtherance of business, and the same amount shall be credited to the electronic cash ledger of such person। सर हमें कुछ नहीं समझा, अभी समझेगा। मान लो बेटा मैंने 5 लैपटॉप्स परचेज, कितने लैपटॉप परचेज किए? 5 लैपटॉप। ये 5 लैपटॉप में से मैंने 4 लैपटॉप, ये 5 लैपटॉप में से मैंने 4 लैपटॉप्स बिजनेस के लिए यूज किया और मैंने 1 लैपटॉप पर्सनल के यूज किया। मुझे बताओ इसमें से 5 लैपटॉप में से मैंने बिजनेस के लिए कितना यूज किया? बिजनेस के लिए कितना यूज किया? सर 4। तो सिर्फ आईटीसी आपको 4 का मिलेगा, वो लैपटॉप का नहीं मिलेगा जो पर्सनल यूज के लिए कर रहा हूँ। उसने क्लियरली क्वेश्चन में बोला हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन बहुत ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, अगर आप थोड़ा अच्छे से समझोगे हो जाएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, उसने बोला है एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन entitled to take credit on input tax charge on supply of goods or services to him। बस यहाँ तक समझा। इसका मतलब हर रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी लेने का राइट्स है अगर उससे कोई भी टैक्स चार्ज किया जाता है ऑन परचेज ऑन इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सब। बट एक कंडीशन लगा दी, जो गुड्स वो परचेज करेगा, इनवर्ट सप्लाई करेगा, उसका यूज या इंटेंडेड टू यूज, अगर आप यूज नहीं करो फ्यूचर में करोगे, वो बिजनेस के लिए होना चाहिए। बिजनेस के लिए होना चाहिए, बिजनेस के लिए होगा, देन द सेड अमाउंट शैल बी सेड। अब बिजनेस के लिए होगा तो ही आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात, आप जो परचेज टैक्स परचेज करते वक्त पे करोगे, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है? सर आप लोग ना सेक्शन 49 के बारे में पढ़ोगे नेक्स्ट सेमिस्टर में, सेमिस्टर 6 में, जीएसटी में। वहां पे सेक्शन 49 टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। ये अलग अलग हेड्स होते हैं जो आपके जीएसटी पोर्टल पे आपको मिलेगा। जब भी आप रजिस्टर्ड डीलर होंगे, यू विल बी गेटिंग वन जीएसटी नंबर। जब वो जीएसटी नंबर आपको हर एक सप्लायर को मिलता है, जब आप उसमें लॉगिन करोगे तो लॉगिन करते ही आपके सामने 3 इलेक्ट्रॉनिक बुक ओपन होंगे। वन विल बी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, second will be electronic credit ledger, and third will be electronic liability register। ऐसे 3 इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्स होंगे। इसके बारे में एज ऑफ नाउ मैं अभी डिस्कस नहीं करता हूं, बिकॉज ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा जब आप सेमेस्टर 6 में उसमें एंट्री करोगे, ठीक है। ये ध्यान देना। आप जो भी टैक्स पे करोगे ना, वो टैक्स आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। बेटा क्रेडिट लेजर वो लेजर है जिस जो हम आईटीसी के लिए यूज करते हैं। बेटा मैं जो भी टैक्स पे करूंगा, मेरी बात ध्यान दो, जो भी इनपुट टैक्स में पे करूंगा, जो भी इनपुट टैक्स में पे करूंगा, वो सारा का सारा मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा।
कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, मेरे अकाउंट में। सर आपके कैसे जाएगा, आप रेसिपिएंट हो, आपने सप्लायर को टैक्स पे किया, आपने सप्लायर को टैक्स पे किया, तो वो टैक्स आपके अकाउंट में कैसे जाएगा बेटा, जाएगा। आप लोगों ने ना एक चैप्टर पढ़ना है रिटर्न्स, वो भी नेक्स्ट सेमेस्टर में, GSTR 1, GSTR 2। जब GSTR 2 अपलोड करोगे, जब वो GSTR 1 अपलोड करेगा, बिकॉज जिससे आपने परचेज किया है उसने आपको सप्लाई किया है। एक बात हमेशा ध्यान देना है, GSTR 1 और GSTR 2 क्या होता है। सो GSTR 1 एंड GSTR 2, that is goods and service tax return, goods and service tax return. So GSTR 1 is for outward supply, is for outward supply, और GSTR 2 is for inward supply। किसका है, इनवर्ड सप्लाई। बेटा हर डीलर को, रजिस्टर्ड डीलर को डिटेल फर्निश करनी पड़ती है। एक बच्चे ने मुझे पूछा क्या ये रिटर्न है सर, नहीं नहीं बेटा ये रिटर्न नहीं, नाम भले रिटर्न यूज हुआ है बट ये रिटर्न नहीं। आई होप ये रिटर्न नहीं, GSTR 1 एंड GSTR 2 इज नॉट अ रिटर्न। ये वो डिटेल है जो एक रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश करता है, ये डिटेल सारे के सारे फर्निश करता है, और वो भी इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करता है। कहाँ पे फर्निश करता है, जीएसटी पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे, वो भी अपने अकाउंट के लॉगिन पे, अपने अकाउंट में वो लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद अपने आउटवर्ड डिटेल को GSTR 1 करके सबमिट करेगा, एंड अपने इनवर्ड सप्लाई के डिटेल को एस GSTR 2 करके ये दोनों डिटेल सबमिट करेगा। जब वो GSTR 1 सबमिट करेगा, कौन, जिससे मैंने परचेज किया है, जब डिटेल वो फर्निश करेगा तो बताएगा कि सर ने ये अकाउंट GSTN नंबर से उससे इतने गुड्स खरीदे और मैंने सर से इतना टैक्स कलेक्ट किया। जब वो डिटेल मेंशन करेगा, वो डिटेल जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। इधर क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश अब कर दिया क्या मैंने, हाँ सर आपने, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कहाँ पे ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऐड हो जाएगा। जब मेरा सप्लायर, सर हमें ना थोड़ी थोड़ी बातें आपकी समझ में नहीं आ रही, बेटा समझ में आएगी, इट विल टेक टाइम। इतना आसान होता तो सबको समझ में आ जाता, इट विल, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। ठीक है सर, सर पॉइंट नंबर 1 हमें समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 1 से जो कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं पॉइंट नंबर 1 से, कि सर आईटीसी का बेनिफिट लेने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और आप जो भी गुड्स परचेस करोगे वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, 100% करेक्ट। तो कंडीशन 1 बोलता है कि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, हाँ। क्या आपने गुड्स और सर्विसेज इनवर्ड सप्लाई में ली, हाँ। क्या वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज की, हाँ, तो आपने कंडीशन 1 का बेनिफिट, कंडीशन 1 फुलफिल कर। अभी दौड़ते दौड़ते आईटीसी का बेनिफिट मत लेना जल्दबाजी में, रुको, अभी भी और 2 कंडीशन बाकी। खुश हो गए बच्चे, अरे वाह कंडीशन फुलफिल हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये हमेशा ध्यान दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर हमने कंडीशन 1 से ये देखा है कि सर अगर आप कोई भी इनवर्ट सप्लाई करते हो और आप रजिस्टर्ड डीलर हो, तो आपको, रजिस्टर्ड डीलर हो, तो जो भी आपने इनवर्ट सप्लाई किया हुआ है वो उसका यूज हमेशा बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए होना चाहिए। मे बी अभी कर रहे हो या फ्यूचर में करो, पर्पस बिजनेस होना चाहिए। ठीक है सर। सर आपने ये लाइन तो पढ़ा ही नहीं, आपने तो सिर्फ ठीक करके दिया था। शैल, shall to subject to such condition restriction as may be prescribed within the time or manner specified in section 49। now what is section, देखो बेटा मैंने आपको GSTR 1 के बारे में बताया, बेटा किसी भी बच्चे ने मुझे नहीं पूछा सर GSTR 1 फाइल कभी करते थे। एनीवे सर आपने बोला है ना कि नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, बस तो ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली नेक्स्ट सेमेस्टर में ही पूछेंगे। ठीक है चलेगा, आपका मर्जी। बेटा GSTR 1, जो जीएसटीआर होता है, वो हम लोग मंथली बेसिस पे सबमिट करते हैं। कौन से बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे, जैसे कि एग्जांपल, लास्ट मंथ कौन सा था सर, लास्ट मंथ अगस्त। तो अगस्त का जो भी आउटपुट सप्लाई है, अगस्त का जो भी आउटपुट सप्लाई, सितंबर के 10 तारीख तक, सितंबर के 10 तारीख तक वो डिटेल फर्निश होनी चाहिए। आई होप आई एम राइट, अगर कुछ अमेंडमेंट चेंजेस हुआ है तो प्लीज लेट मी नो। इफ सम चेंजेस has been taken, please let me know. Is any changes taken place, those who are doing professional courses, is it correct, 10th September is it correct? If you have outward supply in 10th, in the month of August, you are going to furnish it by 10th September, is it correct?
माय गुडनेस, चलो नहीं पता, वेरी गुड। और इनवर्ट सप्लाई की जो डिटेल है उसमें 5 दिन और ऐड करके दिए जाते हैं, और 15 सितंबर तक वो आपको डिटेल क्या पढ़ने पड़ते हैं, फर्निश। सितंबर है तो सितंबर अगस्त का डिटेल आपको 10 सितंबर आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ट सप्लाई प्लस 5। 2 दिन आपकी करेक्शन के लिए दिया जाता है, 17 सितंबर तक करेक्शन के लिए, अगर कुछ मिस्टेक्स आपसे हुई है तो करेक्शन करो, और नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख तक जीएसटी का टैक्स पे करो। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है हर किसी के लिए, और ये हर पर्सन ने फॉलो करना है जिसको जीएसटी नंबर है। अगर सर मैं नहीं फॉलो करूँ तो, बेटा तो कैसे आगे, बेटा थोड़ा ना छूटेंगे आप, आपको गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी, ये ध्यान देना, कुछ एक्शन डेफिनेटली देगा कोई। ठीक है सर, ये भी समझ में आ। नाउ वी विल बी लर्निंग विद द नेक्स्ट आंसर। तो सर हमें समझ में आ गया, ये टाइम पीरियड का मतलब आप यही कहना चाहते हो कि जीएसटीआर 1 नेक्स्ट मंथ के 10 तक हो जाना चाहिए, जीएसटीआर 2 नेक्स्ट मंथ के 15 तक हो जाना चाहिए। तो ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको ज्यादा नहीं पढ़ा। बस कंडीशन 1 में मुझे एक बात पता है, वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, और बिजनेस और प्रोफेशन के लिए वो गुड्स यूज होना चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझा बेटा? ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 2, बेटा पॉइंट नंबर 2 खत्म करेंगे, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नॉट विथ सेंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन। कुछ नहीं समझा सर। Subject to the provision of section 36, subject to the provision of section 36। Now sir, what do you mean by section 36? Sir, section 36 क्या है? section 36 जो है, I guess if I'm not wrong, it is written। section 36 रिटर्न के बारे में बात, रिटर्न के बारे में, रिटर्न दैट इज जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, 7, 8, 9, ये ऐसे अलग अलग रिटर्न है। नॉर्मल अगर आप एफसी, अगर आप टैग रजिस्टर्ड डीलर हो तो आप लोगों ने जीएसटीआर 3 फॉलो करना है। कंपोजिशन डीलर के लिए अलग जीएसटीआर है, एनआरटीपी के लिए अलग से जीएसटीआर, एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए अलग से जीएसटीआर है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए अलग से जीएसटीआर है। तो हर एक के लिए अलग अलग बना हुआ, एनुअल है, एनुअल रिटर्न है, उसके बाद फर्स्ट फर्स्ट रिटर्न है, ये अलग अलग रिटर्न है। ठीक है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। अब उसने क्या बोला है पॉइंट नंबर 2 में, नो रजिस्टर्ड पर्सन, मैं नो को हटा देता हूं। उसने बोला है कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को एंटाइटलमेंट नहीं है क्रेडिट लेने की, वो तब तक क्रेडिट नहीं ले सकता। पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है, पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है वो तब तक क्रेडिट नहीं ले सकता जब तक वो चारों कंडीशन फुलफिल नहीं करता। ओ हो, इसका मतलब सर, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैंने गुड्स और सर्विसेज इनवर्ट सप्लाई की, और वो बिजनेस के लिए भी यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल की, बट आपने अगर सेकेंड कंडीशन फुलफिल की नहीं की, इवन दो यू आर रजिस्टर्ड पर्सन, यू विल नॉट बी गेटिंग बेनिफिट ऑफ आईटीसी। ये हद हो गई सर। उसने क्लियरली बोला है नो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन क्रेडिट तब तक नहीं ले सकता जब तक फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, फुलफिल नहीं है, अनलेस अनलेस अनलेस। नंबर 1, नंबर 1 बहुत ध्यान देना, नंबर 1 रीड कर रहा हूँ, नंबर 1 रीड कर रहा हूँ। मान लो बेटा ये सप्लायर है, मुझे बताओ आईटीसी कौन लेगा, सप्लायर लेगा या रेसिपिएंट लेगा? बोलो बेटा, आईटीसी का बेनिफिट किसको मिलता है, सप्लायर को मिलता है, रेसिपिएंट को मिलता है? इसमें इसमें इनपुट टैक्स कौन पे करेगा? इसमें इनपुट टैक्स कौन पे करेगा? रेसिपिएंट पे करेगा। तो सर रेसिपिएंट को आईटीसी का बेनिफिट तब मिलेगा जब सप्लायर ने उसको इनवॉइस दिया हो और वो उसके पोजीशन में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए सप्लायर ने बोला मैंने इनवॉइस ड्रॉ कर दिया है, ड्रॉवर में पड़ा है, जब भी तू आएगा कलेक्ट करके लेके जाना, नहीं 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 चलेगा। वो इनवॉइस सप्लायर के नहीं, रेसिपिएंट के पास होना जरूरी। अगर रेसिपिएंट के पास इनवॉइस है तो उसने फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। पहली कंडीशन क्या है सर, इनवॉइस सप्लायर रेसिपिएंट के पास होना चाहिए। अगर रेसिपिएंट के पास इनवॉइस है तो आपने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। मेरा 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कितनी? 4।
सर ये डेबिट नोट क्या है? ओ सर, हम डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में करेंगे। सर डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर आप पहले ही बोले थे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सप्लायर है, प्लीज ध्यान दो, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। सर सप्लायर ने रेसिपिएंट को 1,20,000 के आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, 1,20,000 का आउटवर्ड, या मैं बोलता हूँ रेसिपिएंट ने इनवर्ड सप्लाई, बराबर है। मुझे बताओ सप्लायर ने रेसिपिएंट को इनवॉइस कितने का देना है? बोलो बेटा बोलो, इनवॉइस कितने का देना है? इज इट 1 लाख? इज इट टैक्स इनवॉइस 1 लाख? यस और नो? अरे यस और नो? सर बताएंगे नहीं। क्या उसने इनवॉइस 1 लाख का देना है? सप्लायर ने रेसिपिएंट को 1,20,000 की गुड सप्लाई, सप्लायर रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू कर रहा है, इनवॉइस 1 लाख का इशू कर रहा है। वेदर सप्लायर ने इनवॉइस करेक्ट इशू किया है या गलत इशू? चलो मैं भी आराम से बैठ जाता हूँ। ये सारे बच्चे मुझे, हाँ गलत, गलत। मुझे बताओ ज्यादा अमाउंट का इनवॉइस दिया है या कम अमाउंट का इनवॉइस? लेस अमाउंट का दिया है। तो यहाँ पे सप्लायर क्या करेगा? नया बिल इशू नहीं करेगा, पुराना फाड़ के नया बिल इशू नहीं करेगा, वो एडिशनल 20,000 का डेबिट नोट इशू करेगा। अब ये मत पूछना डेबिट नोट क्या होता है बेटा, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में करेंगे। सो डेबिट नोट सप्लायर तब इशू करता है जब वो इनवॉइस कम वैल्यू का शेयर करता है। समटाइम ऐसा भी हो सकता है, करना था 1,20,000 और कर दिया उसने 1,50,000। सर ज्यादा कर दिया, ज्यादा किया, तो सर वो क्या करेगा? पुराना इनवॉइस मतलब कैंसिल करके नया इनवॉइस नहीं इशू करेगा, वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। So credit note are issued when the tax invoice are issued at a higher value than the actual value. Is it okay or not? तो मुझे बताओ रेसिपिएंट के पास एक तो टैक्स इनवॉइस होगा, बरोबर है। अगर वैल्यू कम का इनवॉइस इशू किया रहेगा तो डेबिट नोट होगा। जरूरी नहीं डेबिट नोट हमेशा होगा, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। या ज्यादा का होगा तो क्रेडिट नोट होगा, बट ये डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं कि हमेशा होना चाहिए, पर टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। ठीक है सर। तो पहला कंडीशन आप ये बोलते हो कि सर उसके पास टैक्स इनवॉइस होना जरूरी, डॉक्यूमेंट होना जरूरी, ठीक। दूसरी बात, सर रेसिपिएंट ने गुड्स की डिलीवरी या सर्विसेज ले ली होनी चाहिए। बाप रे, इसका मतलब सप्लायर ने रेसिपिएंट को गुड्स डिलीवर कर देना चाहिए। इसका मतलब सप्लायर, सॉरी, इसका मतलब रेसिपिएंट शुड बी इन द पोजीशन ऑफ गुड्स। गुड्स का पोजीशन रेसिपिएंट के पास है। सप्लायर ने बोला एक काम करना, 10 कभी आ रहे हो? उसने बोला मैं 1 हफ्ते के बाद आ रहा हूँ। ठीक है, 1 हफ्ते के बाद आ रहे हो, 1 हफ्ते के बाद लेके चले जाना फैक्ट्री से, ऐसा नहीं चलेगा। जब भी आप आईटीसी का बेनिफिट ले रहे हो, मेक श्योर दैट, जब भी आप आईटीसी का बेनिफिट ले रहे हो, मेक श्योर दैट गुड्स की जो डिलीवरी है वो रेसिपिएंट तक हो जानी चाहिए। गुड शुड बी इन पोजीशन ऑफ द रेसिपिएंट, गुड शुड बी इन द पोजीशन ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट के पोजीशन में हो जाना चाहिए। ओके सर। सर अगर मान लो सर ऐसा डाउट है इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं पूछता नहीं, होता आपको पता है। यस बेटा, वो तो मुझे पता है, पूछ लो तो। अभी आपने क्वेश्चन रेज ही किया तो पूछ लो। मान लो सर मैंने गुड्स तो जो था वो 10,000 का परचेज किया, मैंने गुड्स को 5 लॉट में मंगाया। कितने लॉट में? 5 लॉट्स में। पहला लॉट में 2,000 का गुड्स रिसीव किया, सेकेंड लॉट में 2,000 का, थर्ड लॉट में 2,000 का, थर्ड लॉट में 4,000, और यहाँ पे मुझे बताओ मुझे फर्स्ट लॉट मिला, क्या मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं? आंसर इज नो। आपको पूरे 10,000 का गुड्स पोजेशन होना चाहिए। हो सर, समझ में आ, समझ में, सर हमें बात पूरी समझ में आ गई। आप ये कहना चाहते हो 2 लॉट रिसीव करोगे तो भी नहीं मिलेगा, 3 लॉट 4 लॉट नहीं मिलेगा, जब आपको लास्ट लॉट मिलेगा तो आप आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हो। तो क्या सर हम ऐसे कर सकते हैं, 5th लॉट को फर्स्ट लॉट बनाते, 5th लॉट को ही लास्ट पहले ही रिसीव कर लेते हैं? मैं उसको बोलूंगा एक काम कर, 5th वाला लॉट पहले ही भेज दे। तो गवर्नमेंट बोलता है जब आप 5th को पहले ही बना लेना ले रहे हो, तो वो 5th लॉट को मैं फर्स्ट लॉट करके कन्वर्ट कर दूंगा, ये भी ध्यान। तो गड़बड़ी नहीं करना, गड़बड़ी नहीं करना, ये ध्यान रखना।
बात समझा? तो आपको पोजीशन पूरा का पूरा मिल जाना चाहिए। अगर आपको वो लॉट में मिल रहा है तो मेक श्योर दैट लो लॉट लास्ट लॉट में आपको डिडक्शन। दैट्स इट। सेकंड कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन आपको इनवॉइस मिला, हाँ। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन कि आपको गुड्स के, आप गुड्स के पोजीशन, गुड्स के सारे पोजीशन मिलके, हाँ सर पूरा 100% गुड्स मिला तो आप इलिजिबल हो। सर नहीं आधा मिला आधा नहीं मिला तो आप इलिजिबल नहीं हो। पॉइंट नंबर 3, मुझे बताओ बेटा, क्या रेसिपियन, क्या बिजनेस सप्लायर, आपको लगता है ये सारे गुड्स रेसिपियन को कैश पे बेचता होगा? हाँ सर कैश। पर आपको लगता है रेसिपियन हमेशा उसको पैसे कैश में देता होगा? नहीं नहीं सर। रेसिपियन ने बोला होगा मान लो 2 महीने के बाद पेमेंट दे रहा हूँ, विश्वास नहीं है क्या किधर भाग जाऊंगा? ये नॉर्मली ऐसा होता है बिजनेस टर्म में। विश्वास आज उधार कल नकद, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। तो सप्लायर ने रेसिपियन को गुड सेल किया, रेसिपियन ने उसको बोला कि मैं पैसे आपको 2 महीने के बाद दूं। ओ हो सर, पर इसको तो सप्लायर को पैसे 2 महीने के बाद, पर सप्लायर को पता है कि रेसिपियन काफी अच्छा है, वो पैसे मुझे देगा ही देगा, वो जाएगा कहाँ पे? और सप्लायर ने, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऊपर देखो बेटा ऊपर, वो एग्जाम्पल रब कर दिया मैंने, ठीक है। सप्लायर ने 1 लाख रुपीज का गुड्स क्या किया था, सप्लाई किया था, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, और 12% मतलब 12,000 का जीएसटी कलेक्ट किया। मुझे बताओ, ये जो सप्लाई था, मान लो ये सप्लाई सप्लायर ने अगस्त में किया था, मुझे बताओ क्या 1,12,000 का पेमेंट रजिस्टर रेसिपियन ने सप्लायर को किया क्या? आंसर इज नो। बट सप्लायर क्या करता है, सिंस ये परचेज उसने, सॉरी ये सप्लाई उसने आउटवर्ड सप्लाई अगस्त में किया है, तो वो टैक्स गवर्नमेंट को वो पे कर देता है बिना रेसिपिएंट से मिले। सर ये आपको नहीं लगता काफी बड़ा रिस्क होगा? नहीं नहीं बेटा, रिस्क कुछ नहीं होता है, ये आगे जाके आपको और डिटेल में समझ में आएगा, डोंट वरी। उसने बोला है सप्लाई, रेसिपिएंट ने टैक्स का अमाउंट नहीं दिया, रेसिपिएंट ने टैक्स का अमाउंट नहीं दिया, बट सप्लायर ने दे दिया। अगर सप्लायर ने गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को तो मिला, बेटा गवर्नमेंट को पैसे कौन देगा? गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करेगा? सप्लायर करेगा। सप्लायर ने दे दिया बिना रेसिपिएंट से कलेक्ट कर, दे दिया ना, तो भी रेसिपिएंट को डिडक्शन मिलेगा। इवन इफ रेसिपिएंट खुद के जेब से टैक्स नहीं पे करता, टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड, बेटा पेड होना चाहिए, पेबल होगा तो माइनस करने नहीं मिलेगा। और टू दी अकाउंट ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब अगर सीजीएसटी तो सीजीएसटी में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, एसजीएसटी है तो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, यूटीजीएसटी तो यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट में जाएगा, एसजी अपना आईजीएसटी तो आईजीएसटी में जाएगा, राइट? Either in cash or through utilization of input tax is admissible in respect of said supply। तो उसने बोला है कि आपको आईटीसी का बेनिफिट तब मिलेगा जब वो सप्लाई, जो सप्लायर ने किया था उसके ऊपर अगर सप्लायर टैक्स पे करता है, भले रेसिपिएंट ने अभी तक सप्लायर को नहीं दिया तो भी उसको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। कितना मस्त है, मतलब रेसिपिएंट बिना पैसे दिए हुए फायदा ले रहा है। क्या ले रहा है? फायदा ले रहा है। कितनी अच्छी बात है। एंड लास्ट वन इज, सर सप्लायर ने रिटर्न फर्निश कर देना चाहिए। ये सेक्शन 36 है बेटा, सेक्शन 34 नहीं है, सॉरी, सेक्शन 36। तो अगर सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा है, जीएसटीआर 1 का मतलब क्या है? आउटवर्ड सप्लाई। अगर ही हैज फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 36, अगर ये रिटर्न फाइल करेगा तो बेनिफिट किसको मिलेगा? रेसिपिएंट को मिलेगा। सर समझ में आ गया? तो इसका मतलब सर, अगर मैं इसको समराइज करूं, जस्ट 2 मिनट लगेगा मुझे, और सेक्शन 16(1) में ये रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज जो इनवर्ड सप्लाई करेगा वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए होना चाहिए। 16(2) में वो बोलता है, 16(2)(a) में, सर टैक्स इनवॉइस जो है वो रेसिपिएंट के पोजीशन में होना चाहिए। बी बोलता है गुड्स की डिलीवरी रेसिपिएंट के पोजीशन में होनी चाहिए, या सी, बी सर्विसेज रेसिपिएंट ने अवेल होनी चाहिए। सी बोलता है, सी 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 क्या था, हाँ सर, सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए, सप्लायर पे टैक्स टू गवर्नमेंट, टैक्स टू गवर्नमेंट फॉर ऑन सप्लाई मेड टू रेसिपिएंट। और तीसरा, सर रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए, रिटर्न फाइल होना चाहिए या फर्निश होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हुए हैं तो आपने 16(2) फुलफिल किया। तो सर ये 16(1) 16(2) में उसको आईजीएसटी का अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या? स्टिल सर 16(3) बाकी है, 16(4) बाकी है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई डाउट पूछना है, प्लीज लेट मी नो, सो हम लोग आगे बढ़े। स्टिल इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, प्लीज लेट, बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो। देखो, इसका मतलब एक ही है सर, आप पढ़ाते बहुत अच्छा, डाउट ही नहीं आता, डाउट ही नहीं आता। ठीक है, चलो देन बाय फॉर द डे, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।